ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਹੋਪਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 4 ਵਜਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਘਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੜਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆ ਨਾ ਰੇਲਿੰਗਸ ਤੇ LED ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਊਗੇ। ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਸ਼ਾਰਤ ਲਈ। ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਵਲੌਗਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਆ, ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜੈਕਟ ਜੁਕਟ ਪਾ ਕੇ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ 6 ਡਿਗਰੀ ਚੜ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ ਹੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਸਾਫ਼ ਆ, ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ, ਬਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਵਿਊ ਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਵਿਊ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸਟਾਰਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਾਈਟ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ, 23rd 24th ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਈਵ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ 24-25 ਤਰੀਕ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ।
बाकी जो जिद्दां जिद्दां दिन चली जाऊगे अगे तो अगे उदा उदा थोड़े नाल मैं शेयर करी जाऊँगा। तो हो सकता है शायद कि मैं दूसरे चर्चिज़ भी विजिट करा, तो जे मैं करूँगा तो फिर मैं थोड़े सारे नाल वो भी चीज़ां शेयर करूँगा। रोशनी की हाल है फिर वधिया है ना। तो हुण असीं 2 जने इकट्ठे हो गए हैं, हुण असीं अपने तीजे भरा नूं उठाउण चले हैं। हौली हौली असीं 3-4 जने हो जाना, फिर असीं चर्च जावांगे। साइमन नूं फोन कीता ते साइमन दा फोन ऑफ आउंदा पिया। गेट खड़काउने आ। चंगा तो नहीं लगता वैसे लोगों नूं सवेरे 4 बजे उठाउण दा, बट सारे जो उठे होंदे आ फिर मज़ा भी उस चीज़ का आ कि नहीं, है ना। लो जी एक मुंडा छोटा जिहा आया, डेडिकेशन है ਇਹਦੀ, ਇੱਕੋ ही आवाज़ ते उठ के तो आ गया। किद्दां बई मुंडिया, साडा बंदा वो भी आ गया, एक साडा बंदा है ताया साडा, एक चाचा अंकल साडा, बंदे हो गए इकट्ठे। चलो 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 बस असीं 2 जने होर ले आइए। इधर नूं नहीं, वो बंदे की हाज़री लानी ही। चलो वो मैदान 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 वो मैदान। ओहो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती सारे आसमान, ज़मीं पर खुशी होती है सारे आसमान। वाया आसमानी सुनाई सरगवाणी बहुत ही खुशहाल। जय 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 यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज रूप जो तेरा सितारों में है अक्स जो तेरा ही, है तेरा ही, सितारों में है अक्स जो तेरा ही। कि तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठा
ये गीत सुनाएंगे। एक पाक मोहब्बत का न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। एक पाक मोहब्बत का सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल अपना सजाएंगे ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, साताज से सागर में। सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। बताएंगे ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल अपना नहाएंगे ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। उठाएंगे साज बजाएंगे ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। जय जय जय। राजा राजा आया हालेलुया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा आया हालेलुया आया, राजा राजा आया हालेलुया आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया राजा राजा आया, हालेलुया शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा आया।
माफी यीशु आया करने के लिए, राजा यीशु आया। हालेलुया राजा राजा आया, हालेलुया राजा यीशु आया। बाबा राजा यीशु आया। राजा यीशु आया मरने के लिए, राजा यीशु आया, यीशु आया। पापे माफ की माफी, पाप की माफी देने के लिए, राजा यीशु आया। पूरी शांति देने के लिए, राजा यीशु आया। राजा राजा आया, हालेलुया आया। राजा आया, हालेलुया आया। हमको जीतने के लिए, राजा यीशु आया। राजा यीशु आया। बोलो सारे लोग, राजा यीशु आया। हालेलुया हालेलुया जय जय जय। मुकतले साथ आया है, दूत मिल गाते जय जय हो प्रभु, जय जय हो। आया है अनति आया, आया है यीशु आया है, आया यीशु आया है। मुकतले साथ आया है। सलाम जी, सलाम सलाम दे। चलो 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 चलो।
भजन संहिता 50 7 से 15 तक। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलि के विषय दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु तो और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्योंकि मैं बैल का मांस खाऊं, क्या मैं बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने जाने के सबको आशीष दे। आमीन। पाक रक्त में संभाला हुआ है। इस समय प्रभु जी हमारे देह प्राण आत्मा पर तो अपना नियंत्रण कर, और प्रभु जी अपने पाक रूप के द्वारा अपनी गहरी बातों को हम सब के लिए आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले से तो खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और कलाम कहता है कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारा जो जीवन है वो किस तरह से परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिए। उसके लिए प्रभु का कलाम हमारी अगुवाई करता है कि हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे इस्राएल सुन, मुझे तेरे मेल बलियों के विषय में कोई दोष नहीं है। तेरे मेल बलि तो मेरे चढ़ते हैं। अजीजों, प्रभु मेल बलियों से, अन्य बलियों से बेहतर क्या चाहता है? हम उसके हुक्म को मानें, आज्ञाओं का पालन करें, और वचन को अपने मन में रखें, उसके अनुसार चलने के लिए यत्नशील रहें हमेशा। खुदावंद कहता है, मैं तेरा गवाह हूं, मैं तेरा साक्षी हूं। जिसका गवाह खुदा है उसको कौन हरा सकता है? अय्यूब की गवाही खुदा ने दी, किसी व्यक्ति ने नहीं दी। अय्यूब के बारे में खुदा ने कहा, तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी फख्र की बात है खुदा के लिए कि अय्यूब की गवाही खुद खुदा देते हुए फख्र करता है, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है? उसके जैसा खरा और धर्मी, विश्वास योग्य, परमेश्वर का भय मानने वाला कोई और मनुष्य नहीं है। हमारे जीवन में कोशिश हमारी होती है कि हम लोगों को खुश करें, रिश्तेदार नाराज ना हो, पड़ोसी नाराज ना हो। हम धरती की नाराजगियां सुधारने में लगे रहते हैं, जो नाराजगियां खुदा से होगी उसके ऊपर ध्यान हम नहीं देते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजों से हम वंचित रहते हैं, और हमारे मन की शांति,
हमारे पास नहीं होती है। मन की शांति कब आती है? जब हम परमेश्वर जो शांति का दाता है, परमेश्वर जो इस धरती पर शांति लेके आया, जिसने शांति के लिए, मेल मिलाप के लिए अपनी जान दे दी, हम उसके साथ संगति नहीं करते। ये एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो जिसको खुश करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं है, दुनिया को खुश करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, हमारे मन में बोझ आता है। कलाम कहता है कि बोझ को अपने यीशु पर डाल दो, वो तुम्हारी चिंता करता है। एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेके जा रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग औरत मिली जो घास की गठरी उठाई हुए जा रही थी। उसने कहा कि आप ऐसा करो, इस बैलगाड़ी पे बैठ जाओ, मैं भी घर की तरफ जा रहा हूँ, ले जाऊंगा तुम्हें। और उस औरत ने क्या किया, बैलगाड़ी पर बैठी। थोड़ा आगे गए तो उसका जो गाड़ी का टायर खड्डे में पड़ा, और जब टायर गड्ढे में पड़ा तो झटका लगा, पीछे बैठी औरत की चीख निकल गई। किसान ने पीछे मुड़ के देखा कि औरत बैठी तो है, लेकिन गड्ढी को सिर पर ही रखा हुआ। वो कहता है ऊपर बैठने के क्या फायदा, ये गड्ढी सिर पे रखनी है, अपनी गड्ढी को गाड़ी पर तो। ऐसे ही हम कई बार अनजाने में, अज्ञानतावश बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं जो ठीक नहीं होती, और जब ठीक नहीं होती तब हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करती है। हमें हर चीज को, हर बात को, हर काम को सही ढंग से करना बहुत जरूरी है। अगर हम तेल को पकाए नहीं, बीच में प्याज डाल दें, सब्जी कैसी बनेगी? बिल्कुल बेकार, कच्चा तेल होगा, खाने में स्वाद नहीं। चाहे जितना मर्जी पका लो, उसका कच्चे तेल का स्वाद खत्म नहीं होता है। बेढंग से किया गया काम जो है, उसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्या आ जाती है, और उसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानी आती है, अशांति आती है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, तेरे मेल बलियों के विषय मुझे कोई चिंता, मेरे कोई शिकायत नहीं, चढ़ दे। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं, मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। ना मुझे बैल चाहिए, ना बकरे चाहिए, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर तो मेरे ही हैं। खुदा ने सब कुछ बनाया, अपनी हुक्म से बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, वो उसका ही है। हमारी जिंदगी भी खुदा के हाथ में ही है। आज मैं बोलता हूँ, कल पता नहीं होना कि नहीं होना, ठीक है? तो ये तो उसके हाथ में है, मैं जीऊं या मरूं, उसके हाथ में है। लेकिन जो मुझे करना है वो खुदा हमें बताता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षी को मैं जानता हूँ, मैदान पर चलने वाले फिरने वाले सब जानवर भी मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहना, ये सब तो मेरे ही है। मैं इसको खा सकता था, कभी खा लेता, कभी भी इनका लहू पी लेता, कभी मांस खा लेता, ये सब तो मेरे ही है। कहता यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है। तो क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। ये सांस उसकी है, हमारे घर, हमारी बरकतें, ये सब उसकी हैं। ये कपड़े पहने हुए उसके हैं। अगर हम कहते हैं मैंने अपनी कमाई से कमाया, जब कलाम कहता है यदि मैं तुझे कमाई करने की ताकत ना दूं तो कैसे कर पाएगा? सब तो खुदा का है। हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए धन्यवाद ही निकलना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, हमारी सांसें, तंदुरुस्ती, पैदल चल के आते हैं, खुदा का शुक्र करो।
कपड़े हैं, सर्दी से बचने के लिए खुदा का शुक्र करो। छत है, बारिश से, ठंड से, गर्मी से बचने के लिए, जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, उसका दिया हुआ। हालेलुया, शुक्र करो। प्रभु चाहता है कि हम हर छोटी छोटी बातों के लिए खुदा का शुक्र करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी शुक्रगुजारी के द्वारा हमारा मेल उसके साथ बढ़ता है। अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे तो हमारा मेल खुदा के साथ नहीं होता है। नीति वचन की किताब में लिखा है कि भेंट जो है वो हमारे लिए रास्ता खोलती है। भेंट हमारे लिए रास्ता खोलती है। अगर हम भेंट नहीं देंगे या भेंट नहीं करेंगे, भेंट में दोनों चीज आती है, मेल मिलाप भी आता है और देना भी आता है ना। और पंजाबी च लिखा है कि असी जो किसी ਨੂੰ रिश्वत देने वो भी सारे रिलेशनशिप मजबूत करती है। तो खुदा रिलेशनशिप के लिए रिश्वत नहीं मांगता है, खुदा धन्यवाद की भेंट मांगता है। हालेलुया, भेंट, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर कदम हम जो उठाते हैं, हर पैर जो उठाते हैं, वो खुदा की मर्जी से उठता है। हमारी उंगलियां हिलती है तो खुदा की मर्जी से हिलती है, आंखें झपकती हैं तो खुदा की मर्जी से झपकती है। एक किसान जो है बीज बोने के लिए गया, उसने रात को बीज बोया, सुबह उठ के देखा तो अच्छे बीज के साथ कड़वे दाने भी उगे हुए थे। वो मालिक के पास गया। जी, मालिक कहते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छे और कड़वे दोनों को बढ़ने दो, तुम उनको उखाड़ना नहीं, अलग नहीं करना। क्या पता तुम बुरे दाने उखाड़ते उखाड़ते अच्छे भी उखाड़ दो, लेकिन जब कटनी का समय आएगा तब मैं खुद जो कड़वे दाने हमको अलग कर दूंगा और जो अच्छे दाने हैं उसको अपने खलिहान में डाल लूंगा, भंडार में जमा करूंगा। तो अजीजों, इस बात को हमें याद रखना है कि हम कौन से दाने हैं, अच्छे हैं या कड़वे हैं। अच्छे दाने ही खुदा के भंडार में जाएंगे, जो बुरे दाने हैं वो सब अलग कर दिए जाएंगे। जैसा हमने कल देखा था कि अच्छी मछलियां अच्छी निकाल ली गई, लेकिन जो अच्छी नहीं थी उनको फिर से समंदर में डाल दिया। हमारे जीवन के अंदर प्रभु की इच्छा क्या है कि हम अपना रिश्ता खुदा के साथ बढ़िया बनाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की विधियों पर चलें। प्रभु यीशु ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आसमान को छोड़ा, स्वर्ग को छोड़ा, ताकतों को छोड़ा, अपनी मर्जी को छोड़ा, सब कुछ को छोड़ा और खुदा का धन्यवाद करते हुए इस धरती पर आ गया हमें बचाने के लिए। उसने करके फिर हमें सिखाया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम भी वो करें जो खुदा हमसे चाहता है। हमारी बातें मेल मिलाप की होनी चाहिए, शुक्रगुजारी की होनी चाहिए, मोहब्बत की होनी चाहिए, कलाम की होनी चाहिए, इज्जत की होनी चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे मुंह से प्रभु की मीठी वाणी ही निकलनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हम सब ने प्रभु की स्तुति की, उसकी आराधना की। जब स्तुति आराधना निकलती है तो प्रभु का वचन कहता है एक ही सोते से कड़वा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। प्रभु आपकी मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं? स्तुति, आराधना, धन्यवाद, शुक्रगुजारी, मेल मिलाप। हम सब खुदा की संतान हैं, अपने खुद ही अपने भाई बहन है हम लोग। तो हम सबको परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए चुना गया है। खुदा की बादशाहत इस धरती पर आए, इसलिए हम चुने हुए लोग हैं और हमें परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है, उसका धन्यवाद करना है। नम्रता, दीनता, मेल मिलाप, मोहब्बत, भाईचारा। प्रभु तो कहता है अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर, सताने वालों के लिए दुआ कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। तो ये सारी चीजें प्रभु का वचन जो हमें कहता है हम पूरी करते हैं, तो ये खुदा के सामने की शुक्रगुजारी के रूप में चले। आइए हम दुआ करें। आइए हम अपने
सरों को खुदा के हुजूर झुकाएंगे। ताकि जमीन और आसमान के बनाने वाले हमारे जीवते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं कि आप महिमा इज्जत और जलाल के जो के खुदा। जमीन भी तेरी है, आसमान भी तेरा है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सब कुछ तूने ही बनाया है। हम सब प्रभु जी तेरे हाथ की कारागरी। प्रभु जी तूने इंसान को इस धरती पर इसीलिए बनाया है वो प्रभु की महिमा करे, उस्तत करे, बढ़ाई करे। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। अपना हाथ बढ़ा और हम सबों को संभाल, सबकी हिफाजत कर, सबकी निगरानी कर कि हम सब लोग तेरे वचन को जानकर अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा उस्तत और बढ़ाई करें। इस बड़े दिनों के दिनों में जब हम प्रभु जी अलग अलग तेरे वचन में से हम सीखते हैं, तो प्रभु जी बख्श भी हम जब सीखते हैं तो हम अपने हृदय में इस सारे वचन को जगा दें और प्रभु जी तेरी महिमा, तेरी सेवा में हम हमेशा लगे रहें। सारा आदर, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं और सब को प्रभु जी अपनी पनाह में लेना और अपने वचन के द्वारा सबको इस्तेमाल करना और बड़े दिन की सब खुशियाँ सबको अता बख्शना, ताकि प्रभु जी सब लोग तेरे पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन के द्वारा हर हाल में, हर वक्त में तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। सारा आदर, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात मानी जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर अब तक तुम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन आमीन। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਹੁਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।